Hello students, how are you? Hope you are well. Myself Ravi. Today is our first chapter for class 8 subject science. Chapter name crop production means fasal utpadan. Food. It is the basic requirement of life to survive. Okay. It is made up of various kind of energy rich substance like carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals which are known as nutrients. Is it clear now? Now, function of food. Food provide energy for various metabolic activities. It helps in growth and development of body. It helps in replacement of worn out tissues and repair of damaged cells and healing of wounds. It provides protection against disease. ओके तो फूड क्या है? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ को सरवाइव करने के लिए. एंड फूड किससे बना होता है? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इनको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स. एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ फूड. नाउ sources of food: cereals, pulses, oilseeds, crops, fruits and vegetables. These are the main sources of food. Now, agriculture. It is the branch of science which deals with the productions of plants and raising of animals useful to man. Agriculture involves soil cultivation, breeding and management of crops and livestock. Now, what is crops? When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crops. Different types of crops require different climate conditions. Okay, means जब हम now types of crops: खरीफ या rainy season crops, rabi या winter season crops, and जायद crops. First one, खरीफ या rainy season crops. These crops are grown during monsoon या rainy seasons. खरीफ crops require warm and wet weather. Okay, खरीफ crops sown in June, July and harvested in September and October months. Example of kharif crops: rice, jawar, urad, bajra, cotton, moong, groundnut. Now, rabi या winter crops, grown during winter season, require cold and dry weather, sown in October and November months and harvested in March or April month. Example of rabi crop: wheat, gram, mustard, potato. Now, जायद crops. जायद crops grown during mainly summer season, require warm and dry weather, sown in March and harvested it in June. Example of जायद: seasonal fruits and vegetables. आप इसको ना डिफरेंट भी कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स, बिकॉज ये आपका चार्ट शेप में है. ठीक है, ये आपका डिफरेंस भी है. नाउ दीज आर द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. बिकॉज हमारा चैप्टर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन. तो हमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. जब हम एग्रीकल्चर खेती या किसानी करते हैं तो हम कौन कौन से इक्विपमेंट मीन्स औजार उपयोग में लाते हैं. Now, these are the name of equipments and uses of equipments: खुरपा, फाड़े, wooden plug, soil plug, seed drill, harrow, skill,
स्पैरर कंबाइन। खुरपे का यूज कहाँ किया जाता है? फॉर वीडिंग, डिगिंग एंड बाउंड्स फॉर फॉर्मेशन, फाड़े। वुडन प्लग का फॉर टिलिंग। ठीक है, ये सारा आप देखेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। दिस खुरपा, साबड़े, सोयल प्रिंग, हैरो। ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, मतलब जब हम किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं तो हमें क्या क्या करना रहता है। ठीक है, स्टेप्स मान सकते हैं, पर इसको प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोबिंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. These are the main practices for crop production. Now, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सोइल मीन्स प्लगिंग और टिलिंग। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल्स डन बाय यूजिंग अ प्लग मीन्स हल के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, मिट्टी को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है। ओके। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल रहता है आपका लकड़ी का और लोहे के रहते हैं। लकड़ी या फिर लोहे का अलग अलग भी हो सकता है, या फिर दोनों का एक प्रकार हो सकता है, वुड और आयरन की मदद से। अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इजीली, मतलब जितना अच्छे से आपका प्लगन की जाएगी उससे क्या होगा, जो हम बीज बोएंगे तो उसका जो जड़ निकलेगा उतना अच्छे से डीपर जाएगा। ठीक है। सोइल इज ओवरटर्न्ड एंड प्रॉपर्ली एरिएटेड बाय प्लगिंग। नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ प्लग हल। ये आपका वुडन प्लग, ये आयरन प्लग। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ट्रेडिशनल प्लगिंग। ठीक है, ये ट्रेडिशनल। अभी क्या है, बैलों को इतना यूज में नहीं लाया जाता, अभी ये मॉडर्न प्लगिंग का यूज होने लगा है। बिकॉज ट्रैक्टर से आप बहुत जल्दी और आसानी से अपने खेत को जोत सकते हैं। लेवलिंग, प्रोसेस टू मेक सोइल सरफेस इन लेवल फॉर सोइंग सीड्स डन बाय यूजिंग अ लेवलर मेड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, मतलब खेत को बखरने के बाद उस मिट्टी को बराबर करना, लेवल करना। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में पटेला चलाना बोलते हैं, पटा चलाना। ठीक है, ये क्या होता है, वुडन लेवलर, आयरन लेवलर। ठीक है। नाउ सोबिंग डन बाय ब्रॉडकास्टर एंड सीड ड्रिल। बिफोर सोबिंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, एक इसके द्वारा किया जाता है, ब्रॉडकास्टर एंड सीड ड्रिल के द्वारा सोबिंग की जाती है। और बिफोर सोबिंग हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स मीन्स बीज चुन लेने चाहिए। ठीक है, ये देखो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ये सीड ड्रिल है। नाउ अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर्स क्या होता है, जो हम लोग अपना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मीन्स आपका जो देसी खाद होता है ना, उसको हम मैन्योर बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स मीन्स जो भी आप शॉप से लेके आते हैं, ये आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकता है, बट मैन्योर आपका ऑलवेज ऑर्गेनिक रहता है, नेचुरल रहता है। ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंट करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, डिफरेंशिएट करके। ना मैन्योर क्या होता है, कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज, बट इन फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट present. In manure contains nutrients in small quantities and are needed in large quantities. मतलब इनमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कंटेन मच हाइगर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, बट फर्टिलाइजर दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ठीक है, आप जैसे हमारे खेत में फास्फोरस की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है, तो आपको जो देसी खाद होता है उसके द्वारा आप उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। आपको फर्टिलाइजर लाना पड़ेगा जिसमें पोटेशियम हो, जो भी जिसकी भी कमी होगी, फास्फोरस हो, डीएपी हो, जो भी होगा वो सारा आपको फर्टिलाइजर में कम, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड एंड विलेज
मैन्योर, ठीक है, हम इसको अपने गांव और खेतों में बनाते हैं, बट फर्टिलाइजर हमेशा फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है। मैन्योर मैन्योर आर bulky substance, so these are inconvenient to store, use and transport, ठीक है। आपने देखा होगा गांव में जिसको खाद या घूरा बोलते हैं, जहाँ पे मतलब जो जानवरों का वेस्ट रहता है, गोबर वगैरह, उसको डालते हैं और वो वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये क्या बहुत ज्यादा होता है, इसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें स्मेल भी आने लगता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर क्या है, ये मतलब एक फॉर्म में आपको किसी भी शॉप में कहीं पे भी रख सकते हो, बिकॉज ये इजीली होता है इनको स्टोर करना, क्योंकि पैक होते हैं, ठीक है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। बट मेन बेनिफिट जो होता है ना मैन्योर का, वो क्या होता है, एक तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये आपको हार्मफुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। बट जो फर्टिलाइजर रहता है इससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है if you use in large quantity. Now these are manure, है ना, मैन्योर स्प्रेडर, ये मशीन से कर रहा है उसको ना, ये फर्टिलाइजर से और इसके स्प्रे के द्वारा डाला जाता है। नाउ इरिगेशन, process of supplying water to crop plants growing in the fields by means of canal, reservoirs, wells, tubewells, okay. Water provides essential micronutrients to crops like hydrogen and oxygen. मतलब खेतों में जब हम पानी देते हैं फसल को या पेड़ पौधों को, उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है। किससे किससे देते हैं सिंचाई, किससे करते हैं, कैनाल से करते हैं, रिजर्वॉयर से करते हैं, कुएं से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं। टाइप ऑफ इरिगेशन, सोइल वेस्ट इरिगेशन, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। सोइल वेस्ट क्या रहता है, क्रॉप ग्राउंड इन सैंडी सोइल रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन देन क्रॉप ग्राउंड इन क्ले सॉइल, ठीक है। मतलब जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी ज्यादा लगता है, और जो क्ले मिट्टी रहती है, क्ले सॉइल, उसमें पानी कम लगता है, ठीक है। क्रॉप बेस्ड मतलब पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, requires more water supply as compared to wheat, gram and cotton. मीन्स जो हम पैडी, जो हमारा धान की फसल रहती है, उसके लिए हमेशा पानी ज्यादा लगता है, या फिर पानी में उसको गाड़ा जाता है, रोपा जाता है, एज कम्पेयर जो गेहूं रहता है, चना रहता है, कॉटन रहता है, इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में लगता है। मेथड ऑफ इरिगेशन, नाउ दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट वन मॉट, इसको बोलते हैं पुली सिस्टम, चैन पंप, डेकली या रेड सिस्टम, इसको बोलते हैं लेवलिंग सिस्टम, लेवल सिस्टम। दीज आर द पिक्चर्स। मॉट सिस्टम, इसमें क्या कुएं से पानी निकालते हैं रस्सी से और इरिगेशन करते हैं। चैन सिस्टम में थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें देखो चैन लगा हुआ है, ये वाटर है, ये आपका वकेट है, ये आपका वाटर सोर्सेस है, और इस चैन से ये घूमता है पूरा और पानी ऊपर आता है, ठीक है। ये देखो रेड सिस्टम है, इसमें भी ये आपका पूरा ये व्हील है, ये वकेट है, इस पे सारा ये घूमता है एंड वाटर इधर से वाटर सोर्सेस से ऊपर आता है, ठीक है। ये डेकली सिस्टम है, देखो। नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट वन ड्रिप इरिगेशन मेथड, सेकंड वन स्प्रिंकलर सिस्टम, थर्ड वन fertigation. Now look at ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या रहता है, पाइप को खेत में डाला जाता है और जगह जगह उसमें रूट के पास, जो भी प्लांट है हमारा, उसके पास छेद कर दिया जाता है, पाइप में होता है, ठीक है, और वहां से ड्रिप से पानी हमारे उसमें जो भी क्रॉप्स है, प्लांट्स है, उनको दिया जाता है, ठीक है। ये आपका दिख रहा है स्प्रिंकलर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फव्वारा। ये देखो, ये नीचे वाटर पाइप है, ये ऊपर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, घूम घूम के पानी आजू बाजू जितना भी प्लांट्स है उन सबको दिया जाता है। नाउ
removal of weeds. What is weeds? Undesirable plants with the main crops. Compete with main crops for water, nutrients, space, light. Means unwanted, मतलब जैसे हमने गेहूं बाया तो उसके साथ आपका क्या आ गया, बथुआ. बथुआ क्या हो गया आपका, वीड्स हो गया. बिकॉज अनडिजायरेबल है, हमें तो गेहूं चाहिए था ना, बट क्या आ गया उसके साथ, बथुआ. अब बथुआ एंड वीट है आपका गेहूं, उन दोनों में क्या कंपटीशन होगा, किस किस के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट के लिए. ठीक है. वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स. मीन्स जो खरपतवार हमारे मतलब पतवार जो रहते हैं उनको हटाना या फिर उनको नष्ट करना वीडिंग कहलाता है. नाउ वीडिंग मेथड. फर्स्ट वन, बायोलॉजिकल मेथड. इसका एग्जाम्पल क्या है, जो परथेनन खरपतवार रहता है उसके खिलाफ हम क्या करते हैं, केसिया प्लांट्स को यूज करते हैं. ठीक है. एंड पेडी फील्ड, जो हमारा धान की खेती होती है, फिर उसमें कोई आ जाता है बीट्स, तो हम उसमें क्या करते हैं, हर्बीवोरस जो फिश रहती है हमारी शाकाहारी, उसको छोड़ देते हैं. तो वो क्या करती है, हमारे पेडी के प्लांट्स को छोड़ देती है, बाकी जो भी है ना बीट्स उसको खा लेती है. ठीक है. सेकेंड वन, केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स मतलब हम इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते हैं फॉर वीडिंग पर्पज. 2,4-D, निट्रोफेन, एथ्रोजाइन. ठीक है, एथ्राजाइन. नाउ कल्चरल मेथड, इसमें क्या होता है, क्रॉप रोटेशन करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं या इंटर क्रॉपिंग करते हैं. ठीक है. मैकेनिकल मेथड्स में प्लगिंग, फ्लोडिंग या वर्निंग कर देते हैं. ठीक है, वीडिंग के लिए. नाउ हार्वेस्टिंग, cutting of crops after its maturation, done by skill or by a machine called harvester. Grains are separated from chaff by a process called threshing. Threshing is carried out by combine, harvester plus thresher. Okay, जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसको काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग. ठीक है. काटने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, सिकल और हार्वेस्टर मशीन का. ठीक है. ग्रेन्स को किससे अलग करते हैं हम लोग, थ्रेसर से अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मशीन से, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग करना. ठीक है. एक मशीन होती है कंबाइंड मशीन, उसके द्वारा भी ये किया जाता है, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसिंग. ये आपका हार्वेस्टर है. ठीक है. ये आपकी कंबाइंड मशीन है. देखो, एक काट भी रही है एंड उसको हमारा जो फसल है उसको अलग भी हो रहा है, तो इसको क्या कंबाइन है, कंबाइन मशीन है. थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग या हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. नाउ लास्ट वन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो हमारी फसल हुई है उसका भंडारण. आफ्टर थ्रेसिंग ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन एंड देन पैक्ड, मतलब उनको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है हल्का सा और उनको पैक किया जाता है. फार्मर स्टोर फूड ग्रेन्स इन जूट बैग और metallic bins. Large scale storage is done in silos and granaries and stored in godowns. At domestic level, dried neem leaves are also used. मतलब जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हमें नीम की सूखी पत्तियों को यूज करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या है, उनमें जल्दी खराबी नहीं आती. जो आपने देखो पट्टे वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो हम सूखी नीम के पत्तियां रख देंगे जब भी हम भंडार करते हैं उसके लिए. ठीक है. डोमेस्टिक लेवल वगैरह रेलवे उपयोग. ठीक है. और बड़े बड़े जैसे हमारा बहुत सारा मतलब फसल है उसको स्टोर करने के लिए गोदाम्स का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. कभी कभी आपने देखा होगा किसान जूट के बैग में या मेटालिक बिन्स होता है उसमें भी अपने जो ग्रेन्स हुआ उसका उसको स्टोर करता है. नाउ दीज आर द गोडाउन्स, है ना, ग्रेनरीज. Now, factor responsible for grains loose during storage. ठीक है. Biotic factors, insects, rodents, birds, meats. मतलब जब हम स्टोरेज करते हैं अपने फसल का, ठीक है, जो भी हमारा फसल हुआ है, तो कभी कभी उनमें ना लॉस हो जाता है. लॉस मीन्स मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है स्टोरेज
की वजह से, जैसे हमने अपनी फसल को पैक करके रख दिया, उसमें इंसेक्ट्स पैदा हो गए, चूहों ने खा ली उसको, चिड़ियों ने खा ली, ठीक है, मिट्स ने उसको खराब कर दिया। ये क्या अपने अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक फैक्टर्स कौन होते हैं? जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, हमने क्या अपनी फसल, टमाटर हमारी फसल हुई, टमाटर को रखने के लिए क्या कोल्ड स्टोरेज में एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बट हमने उसको रख दिया, गर्मी हो गया तो सारा टमाटर क्या होगा आपका, खराब हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर से भी कुछ कुछ फसल खराब हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा हो गई। एंड मटेरियल ऑफ कंटेनर, कई बार क्या है, मटेरियल ऑफ कंटेनर धातु का जो बर्तन है वो उसका उस फसल के साथ रिएक्शन हो गया और आपकी जो भी आपने स्टोर करके रखा था अपना ग्रेन, वो आपका खराब हो गया, लॉस हो गया उसको। ओके, नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट ग्रेन लॉस, मतलब कौन कौन से मेजर्स हम लोग ले सकते हैं जिससे स्टोरेज करते समय हमें कम से कम, स्टोर करने के बाद कम से कम लॉस हो हमारी फसल को। ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, ठीक है, मतलब स्टोर करने से पहले हमें क्या उसको सुखा लेना चाहिए अच्छी तरह से। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, improve storage structures, ठीक है, these are the measures to prevent grain loss. Now these are the common disease of crop plants, ठीक है, ये क्या सभी कॉमन बीमारियां हैं जो फसल में लग जाती हैं। ये क्या डिजीज नेम है, ये होस्ट है, ठीक है, मतलब कहाँ होती है। एंड कैजुअल एजेंट्स मीन किसके द्वारा होती है, फंगी, वायरस या बैक्टीरिया। फर्स्ट वन रस्ट, ये आपके गेहूं में होती है और ये किसके द्वारा होती है, फंगी के द्वारा। ठीक है, ये लेट ब्लाइट हो गया, ये भी आपके गेहूं में होती है। रेड रॉट आपका शुगर कैन, मतलब ठीक है, गन्ने में आपने देखा होगा कभी कभी गन्ने के जॉइंट पे क्या रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या वो जॉइंट है पूरा रेड हो जाता है। ठीक है, ये क्या आपका फंगी की वजह से होते हैं। ठीक है, ये अपने सारे फंगी की वजह से होते हैं, ये आपके वायरसेस की वजह से होते हैं, एंड दीज आर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, ये वाले सभी अपने, आपको इसका चार्ट बना लेना है अच्छे से और आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल मीन्स agriculture practices that can continue for very long time without damaging the natural resources. ठीक है, मतलब हमें कृषि ऐसे करनी चाहिए कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है ना उनको डैमेज ना करें और काफी समय तक उसको अच्छे से कर सकें, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट वगैरह है, मिट्टी है, वो कुछ भी खराब ना हो। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम, मिक्स्ड फार्मिंग से। ठीक है, मतलब एक बार में हम 2 क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्रॉप रोटेशन, या फिर मिक्स्ड क्रॉपेशन, क्रॉपिंग के द्वारा भी इसको कर सकते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग मीन्स हमें ऐसा नहीं करना एक ही प्रकार की फसल को हम बार बार यूज करते हैं, तो क्या है ना, जैसे किसी फल को नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या हम बार बार नाइट्रोजन वाली फसल को बोएंगे तो क्या मिट्टी में जो नाइट्रोजन है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी क्या खराब हो जाएगी, तो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी हमारी वहाँ पे एग्रीकल्चर। हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना वो उस टाइप की कोई फसल, तो क्या है अच्छे से नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, एक अलग प्रकार की फसल को हमें उसके साथ बोना चाहिए, अब रोटेशन करना चाहिए। ठीक है, एक बार अभी हमने सरसों ले ली, मस्टर्ड ले लिया, नेक्स्ट टाइम हम वीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिक्स हम जैसे कभी कभी करते हैं, जो आपका बाजरा रहता है उसके साथ क्या रहता है आपका, कोई दाल वगैरह पल्सेस वगैरह कर सकते हैं, या इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, दीज आर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नाउ एग्जांपल इंटरक्रॉपिंग, अभी देखो ये मेज, ये सारा प्लांट किसका है, मेज का। एंड ये लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, ये सोयाबीन है। एंड दिस वन ये येलो येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ये ओट है। ठीक है, दिस इज इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक ही फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 3 प्रकार की मीन फसल हम लोगों ने एक ही टाइम पे की हुई है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, 3 सिस्टर्स, बीन,
squash corn. The spading's big leafed squash shades the ground, conserving moisture, inhabited weeds, and returning pests. The corn acts as a natural monopole, while the beans contribute nitrogen to the soil for the other crops to use. Together, beans and corn provide a complete protein. Protein. In this photo, you can see the light green leaves of bean plants growing at the base of corn stalk. Okay, these are the steps. ये देखो आपका कॉर्न हो गया, ठीक है, स्क्वैश हो गया एंड बीन हो गया. Okay. Now next, hybridization. The cross breeding of plants has resulted in new varieties of crops. Okay. The process of developing hybrids is known as hybridization or crossing. Means हम क्या करते हैं, कभी कभी दो डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं एंड एक नई प्रकार की वैरायटी पैदा करते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन. A cross between the best resistant and high yielding variety produce a new plant called hybrid. ठीक है. The hybrid combines the qualities of the both parents. ठीक है, मतलब जो भी हम नया क्रॉप पैदा करेंगे बाय हाइब्रिडाइजेशन से, उसमें क्या है, जो उसके पेरेंट्स थे दोनों की क्वालिटी उसमें प्रेजेंट होती है. In 1960, a number of varieties of wheat were developed by this method. ठीक है, 1960 में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा गेहूं की बहुत सारे प्रकार या फिर जो क्वालिटी रहती है गेहूं की बीज की, उनका उत्पादन किया गया, पर उनको डेवलप किया गया. Now example, look at these flowers, red flower, येलो फ्लावर. इन दोनों को मिक्स करके जो नया फ्लावर बना है, ये देखो, ये डिफरेंट प्रकार का है. इसमें दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज हैं, रेड भी है एंड येलो भी है. दिस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन. In India, Green Revolution started in 1960 by Dr. M.S. Swaminathan, also known as father of Green Revolution in India. Okay, main aim was to increase production of wheat by modern agriculture practices. High yield dwarf variety of wheat, Sabarmati Sonera, was developed in 1967. M.S. Swaminathan, father of Green Revolution, Harit Kranti. Now, what is animal husbandry? Science which deals with scientific management of animals. It includes breeding, feeding, feeding, and weeding. Now, these are the useful animals. Milk yielding animals, cow, buffalo, goat. Meat and egg yielding animals, sheep, goat, fish, pig, poultry. Working animals, donkey, horse, camel, block. Wool, hide and skin yielding animals, sheep, cow, goat, camel. Means दूध के लिए हम किसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? गाय, भैंस, बकरी. मांस एंड अंडों के लिए शीप, गॉट, फिश, सुअर. एंड पोल्ट्री में आपका आ गया मुर्गी, मुर्गा. ठीक है. एंड वर्किंग एनिमल्स में हम किसका यूज करते हैं? गधे का, घोड़े का, ऊंट का एंड बैल का. एंड ऊन के लिए एंड स्किन के लिए किसका यूज करते हैं? भेड़ का, गाय का, बकरी का एंड ऊंट का. नाउ व्हाट इज डेयरिंग? Branch of agriculture that encompasses the breeding,
raising and utilization of dairy animals, primarily cows, for the production of milk and the various dairy products proceed from it. Now, cattle are classified as dairy breeds, means they provide milk. Draught breeds means they used for work. ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, WORK होगा, ठीक है. ड्यूल ब्रीड्स, फीमेल फॉर मिल्क एंड मेल फॉर वर्क. मतलब दूध उत्पादन है ना, डेयरिंग. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? या providing shelter to animals. All animals need proper shelter to protect themselves from heat, cold, rain, predators, and disease-causing organisms. Now, these are the characteristics of good animal shelter can be listed as. It should be large enough. For example, a cow requires a 6 square meter area, while 100 hens need about 30 square meter area. It should be clean, dry, and well ventilated. It should get sufficient sunlight during the day. It should avoid overcrowding of animals. Clean water should be available. Good drainage and hygienic methods of disposal of excheria. It should provide protection to sheltered animals from the predators. Now, fisheries, machli palan. Generally, a fishery is an entity engaged in raising or harvesting fish, which is determined by some authority to be a fishery. According to FAO, a fishery is an activity leading to harvesting of fish. It may involve capture of wild fish or raising of fish through aquaculture. ठीक है, फिशरी को हम और भी नाम से बुला सकते हैं, लाइक मरीन एग्रीकल्चर. ठीक है. नाउ, रोहू, कटला, सिंघारा एंड मगूर आर फ्रेश वाटर फिशेस. Cod, tuna, and shark are seawater fishes. Now, what is apiculture? Apiculture means rearing of honeybees or beekeeping on a large scale for commercial purpose is known as apiculture. मतलब मधुमक्खी पालन. ठीक है, बहुत बड़ी स्केल पर. ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए जब मधुमक्खियों को पालते हैं, उनके शहद को इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एपिकल्चर. ठीक है. ए बी कीपर कीप्स बी इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर honey and other products that the hive produce, including beeswax, popils, flower pollens, bee pollens, and royal jelly, to pollinate crops or to produce bees for sale to other beekeepers. These are the main activities a product in apiculture. A location where bees are kept is called an apiary or bee. Okay. Now, first chapter is complete. Thank you.